Okay, so what is your take on Delhi smoke problem? So one major problem is पराली जलाने की जो एक समस्या सामने आती है किसानों के सामने. Okay. Why is alum added during water treatment plant? Sir, alum act as a coagulant and जैसे मैं आज थी इतनी सहज रहकर मैं अपनी बात बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा जाएगा अगर आप जैसे आज आपने दिया सेम इसी तरीके से आपको उस दिन भी रिकॉर्ड. 4 जुलाई. 4th July. Okay. Engine call sir once please. Yes, ma'am, sure. आप अपने बारे में कुछ बताओ आयु तब तक. Till we start your formal interview, we can discuss something. Okay, ma'am. Ma'am, this is not a part of interview or this No, is... this is not formal interview. I'm just discussing a little. Okay, ma'am, my name is Ayu Singh. I did my Bachelor's of Science and Master's of Science from Department of Zoology, Banaras Hindu University. And then मैम मैंने एक प्रोजेक्ट किया है CCMB हैदराबाद से वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में और उसके बाद मैंने PhD की है. मतलब अभी मेरी थीसिस सबमिटेड है बट वाइवा नहीं हुआ है तो चल रही है PhD. कहाँ से की है आपने PhD? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. अभी आप बनारस में ही हैं, वहीं रहती हैं? अभी मैं घर पे हूँ. थीसिस सबमिशन होने के बाद मैं मतलब वहां से कर चुकी हूँ. हाँ जी, सबमिट हो गई है फरवरी में. अभी मोस्ट प्रोबेबली हो गई होगी अब तक. अभी मैम वाइवा नहीं हुआ है और वाइवा के बाद डिग्री मिलेगी कॉन्वोकेशन पे, तो अभी टाइम है. ओके. PhD के बाद ये जॉब सोची आपने? PhD के बाद जनरली वी गो फॉर टीचिंग. मैम इसकी क्वालिफिकेशन PhD प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस था पहले, मतलब है ही इस जॉब का. लेकिन दूसरा जो ऑप्शन था वो था मास्टर्स प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो मैंने उसमें अप्लाई किया बिकॉज मेरा PhD के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं था. तो अच्छा. हाँ मैम. आप कहाँ जॉब कर रही थी मास्टर्स के बाद? मैम मेरा जो PhD है वो एक JRF SRF के थ्रू CSIR के थ्रू है, तो इसीलिए वो एक रिसर्च एक्सपीरियंस भी काउंट होगा. ओके. जी जी. ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया है जो यहाँ इस जॉब के लिए कुछ रेलेवेंट हो?
मैम वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में किया है, तो वाइल्ड लाइफ इज क्वाइट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पोल्यूशन कंट्रोल और समथिंग लाइक दैट. Angel, has everybody joined? Yes, sir. Everybody's here. अमित सर आ रहे हैं, प्रवीण सर? पता नहीं सर, ज्वाइन तो करने में एक बार कॉल कर लेता हूँ. ज्वाइन तो सर, किया. सर क्लास में ही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, सेशन में हूँ सर. अमित विजय सर, सर सेशन में ही हूँ. कहाँ पर? चलो, so we can start now. Good evening, Ayushi. Good evening, sir. Can you briefly introduce yourself? Yes, sir. So my name is Ayush Singh. I completed my Bachelor's of Science and Master's of Science from Zoology Department, Banaras Hindu University. And then I completed one project in wildlife forensics from CCC Hyderabad. And then I have joined in PhD program in medical Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University. And recently I submitted my thesis and I am preparing for my PhD viva. Okay, what's the topic of your research? My PhD topic was effect of Indian kitchen spices on type 2 diabetic rats. Okay, so any findings you have got? Yes, sir. So in consumable doses, my study lacuna was we already know from the thousands of years that Indian kitchen spices are useful as anti-diabetic and they having the property of antioxidant, but we don't know the consumable doses, are we consuming it beneficial or not. So my lacuna was this, and I found it that in consumable doses only garlic is beneficial. Other cloves, cinnamon, and turmeric, these are not that much beneficial
which is reported in higher doses. Okay. Yes, Then how come you are switching from research background to AEE in Pollution Control Board? Sir, first of all, I'm appearing for ASO. ASO. Yes, sir. वो आप Okay. वहाँ पे अनअकैडमी में यही प्रोग्राम था, इसलिए enrolled. Okay, no issues. Yes, sir. Sir, at first glance, it looks like this, but for me, it's a gradual evolution of my career because first I did my research in wildlife forensics and I understood how the human and species like tiger conflict to each other and the human encroach, basically pollution also, and environment encroachment is affecting the wildlife. And then my experience in the public health, which is also somewhat related to the environment, but I have not studied the direct impact. So yes, my study is not directly related to the pollution, but indirectly my research experience will help in the monitoring, in the measurement of pollutants and manuscript preparation, data analysis, report methodology, ये सब में मैं सर मैंने काम किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है. आपने पॉल्यूटेंट्स की बात करी, आप बता सकते हैं कितनी कैटेगरीज में पॉल्यूटेंट हम डिवाइड कर सकते हैं? सर ब्रीफली फॉर एयर पोल्यूशन 2 कैटेगरी है जिसमें हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट को देखते हैं. और प्राइमरी पोल्यूटेंट वे पोल्यूटेंट है जिसका सोर्स हमें पता होता है, आइडेंटिफाइबल होता है, जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट वे होते हैं जो इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने से या वाटर वेपर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करने से बनते हैं. तो उनका जो सोर्स है वो आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, वे एनवायरनमेंट में ही तुरंत बनते हैं. ओके, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा हार्मफुल है, कुछ बता सकते हैं? So secondary pollutant is the most harmful one, and out of all, according to the National Ambient Air Quality Standard, all 12 pollutants, among of all, particulate matter 2.5 is most harmful because through the respiration and it will go into the systemic function and it will harmful the whole systemic function of the body. ओके. Yes, sir. तो आपने अभी बात करी, you talked about 12 pollutants. Yes, sir. Can you name them? Yes, sir. Sir, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, oxides of carbon, carbon monoxide, and particulate matter 2.5, particulate matter 10, and NH3, ammonia, lead, arsenic, and benzene, benzopyrene, and O3, ozone. What left? I guess. Okay. आपने कौन सा एरिया बताया, कौन सा एरिया से बिलोंग करते हैं आप? Sir, I'm belonging from Bareilly district in UP. ओके, तो वहाँ का AQI पता है आपको? सर जनरली वेरी करता रहता है इसका रेंज, और विंटर्स में ज्यादा होता है. राइट नाउ तो बिकॉज रेनी सीजन है तो थोड़ा AQI इम्प्रूव्ड है सर, अराउंड 300 के आसपास. 300. तो किस कैटेगरी में आता है ये 300? सर ये पुअर कैटेगरी में आता है. पुअर कैटेगरी में आता है. तो अभी विंटर्स या अभी रेनी सीजन में पुअर कैटेगरी में है, तो फिर तो विंटर्स में तो और ज्यादा बढ़ जाएगा. मोर देन 400 एंड समटाइम्स इन सीवियर कैटेगरी. यस सर, समटाइम्स इन सीवियर कैटेगरी. अच्छा, आपने वाइल्ड लाइफ की बात करी, दैट आपने उसके एरिया में भी काम कर रखा है. कैन यू टेल सम साइलेंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट? Wildlife Act. Yes, sir. This act is made for the protection of forest and protection of wildlife animals. And sir, इसमें एक तो जितने भी वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण की बात की गई. उनके लिए जितने जैसे टॉप कार्निवोर्स हैं, टाइगर्स, लेपर्ड्स, बिग कैट्स, इनके प्रोटेक्शन की बात ज्यादा जोर देके की गई, क्योंकि अगर इनकी प्रेजेंस है अगर एक फॉरेस्ट में तो उस पूरे इकोसिस्टम का हेल्दी होना माना जाता है. तो दीज आर दी प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी इन्वायरमेंट. सर इस तरीके के फिर एक्वेटिक एनिमल्स की और बर्ड्स सेंचुरीज बनी है, तो बर्ड्स के संरक्षण की बात की गई है. सर इस तरीके के कुछ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की गई. ओके.
Over to you, sir. Hi, Ayushi. Yes, sir. Sir, कैसे हैं? it's not Ayushi. Ayu. Yes, sir. आयु कैसे हैं आप? Sir, I'm good. What is the purpose of water treatment plant? सर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक पर्पस है कि जो वेस्ट वाटर है उसको दोबारा यूज में लाने के लिए और या फिर डिस्पोज करने से पहले जितना भी अनडिजायरेबल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उसको ट्रीट करके तब डिस्पोज किया जाए, बिना ट्रीट के डिस्पोज ना किया जाए। वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर से मैंने ये बोला कि पर्पस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू ट्रीट द वाटर waste water. Okay. Why is alum added during water treatment plant? Sir, alum act as a coagulant, and when the small particles does not settle itself in the sedimentation tank, we add coagulant to makes the water clean by the help of clogs. So act as a coagulant. ओके, एलम के लिए पानी में एल्कलिनिटी जरूरी है या एसिडिटी जरूरी है? एल्कलिनिटी जरूरी है। ओके, अगर नहीं है तो आप कैसे करेंगे, फिर एल्कलिनिटी कैसे इम्पार्ट करेंगे? एल्कलिनिटी इंक्रीज करने के लिए हम कुछ एल्कलाइन सर बेसिक केमिकल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक KOH और any base, NaOH. Okay, what is AQI? Sir, it's a ambient air quality index. It is an index which represents the air quality in various category. So it is in the satisfactory, good, and moderate, likewise till the severe category. Okay, आपका सिटी का AQI कितना है आयु? सर अराउंड 300 भी अभी के आसपास है। Okay. 300 किस रीजन में आएगा वो? सर ये पुअर कैटेगरी में आता है। Okay. Difference between the coagulation and flocculation? सर कोगुलेशन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर होने वाले चार्ज की वजह से जब वे एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, मतलब आकर्षित नहीं करते हैं, रिपल्शन फोर्स लगता है, तो जीटा पोटेंशियल को कम करने के लिए कोगुलेंट ऐड किए जाते हैं। तो जब आयनिक लेयर का कंप्रेशन करके एक पार्टिकल के आयंस को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उन्हें एक दूसरे के ओर आकर्षित करने के लिए इसे कोगुलेशन कहते हैं, जबकि इनके बड़े बड़े फ्लॉक्स बनने की प्रक्रिया को फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं, जो स्लो मिक्सिंग के दौरान होती है, जबकि कोगुलेशन फास्ट मिक्सिंग के दौरान फास्ट मिक्सिंग रखी जाती है। What is the purpose of sedimentation? बड़े पार्टिकल के पॉल्यूटेंट्स को ग्रेविटी की वजह से सेटल होने के लिए कुछ समय के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में रखा जाता है, जिससे कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनकी जो गंदगी है वो वाटर से दूर हो सके। ओके, मेनली गैस कौन सी रेस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? सॉरी सर, कौन सी गैस से मुख्यतः रेस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? सर SOx और SO2, SO3 एंड NO2। सर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 और H2SO4 जैसे केमिकल एसिडिक केमिकल्स बनाते हैं, और जो एसिड रेन की फॉर्म में हमें रेनफॉल होती है, जो उसकी एसिड की pH बहुत लो होती है। ओके, मेजर एयर पोल्यूशन सिटीज इन यूपी? सर वन नेम आई कैन remember is Ajamgarh in air pollution. Sir, in the solid waste management, Kanpur is the one. In the water pollution, Kanpur is the one. And so these are the names for. Okay, thank you, ma'am. Swati ma'am. Okay, sir. Hello, Ayu. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. You have done PhD. You are a well-qualified candidate. Yes, But ma'am. this job is listed as a temporary job. Does that worry you? No, ma'am. Ma'am, any
any job has the provisional period, and it's listed in the temporary, means the provisional period we have to serve. In that, अगर satisfactory परफॉर्मेंस नहीं रहती है तब कैंडिडेट्स को एक्सपेल किया जाता है, और जहां तक मुझे जानकारी है इसके विषय में, और मैं इसे बहुत सामान्य स्थिति समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना काम ठीक से करूंगी तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, और दैट्स इट मैम। ऑलराइट, अगर आपको लोकल कम्युनिटी को कुछ केमिकल पॉल्यूटेंट्स के बारे में समझाना हो तो आप उनको कैसे समझाएंगे? आप मुझे एक एग्जांपल दें पूरा सिचुएशन का। आम जनता के बीच में बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स और बहुत ज्यादा डेटा की समझ थोड़ी कम होती है, तो मैं किसी प्रेस के थ्रू या फिर इन टुडेज वर्ल्ड पॉडकास्ट के थ्रू या किसी भी जरिए से, ऑनलाइन मीडियम से, मैं जनता को समझाना चाहती हूँ, लेट्स से अबाउट इफेक्ट ऑफ SO2। तो मैं पूरा जो केमिकल रिएक्शन है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको ना बताकर बहुत ही सरल भाषा में लोगों को ये समझाऊंगी कि व्हीकल्स के द्वारा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं व्हीकल्स के द्वारा NOx जैसी टॉक्सिक और पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, और ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं हमारे लिए ही, जैसे लंग इन्फेक्शन हो गया या फिर आई इरिटेशन हो गया। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स किस तरह से NOx से बनते हैं, और इसको एक सरल भाषा में सामने रखते हुए मैं लोगों से अगर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप व्हीकल का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, तो इस तरीके से सरल भाषा में बात करके लोगों को समझाया जा सकता है, जो मैं ट्राई करूंगी। यूपी में अभी कोई ऐसे अवेयरनेस स्कीम्स हैं जिससे हम लोकल कम्युनिटी को या स्कूल स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हूँ अभी एग्जिस्टिंग? यूपी क्लीन एक्शन प्रोग्राम इज देयर, और उसके अंतर्गत ये जो सोर्स पे सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेशन करने की बात है, इसके अवेयरनेस के बारे में मुझे पता है, जो जानकारी है। तो एट द सोर्स पॉइंट ही हम कचरे को या सॉलिड वेस्ट को पहले 3 कैटेगरीज में बांटना होता था, अभी 4 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना होता है, ताकि कलेक्शन के टाइम पे और रिकवरी और आगे रिसाइकिल के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। और ये 4 कैटेगरी कुछ इस तरह से हैं: ड्राई वेस्ट, ई वेस्ट, वेट वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। ओके, आप इस डिपार्टमेंट में कुछ अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगी इफ यू जॉइन दिस यूपीपीसीबी एज ASO? यस मैम, जो मैं मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में यदि मैं आती हूँ तो मेरा काम ये होगा कि शुरुआती कुछ दिनों में ग्राउंड पे किस तरह की, ग्राउंड रियलिटी पे कैसे काम करते हैं, इसको ठीक से गहराई से समझकर उसके बाद में कुछ पॉजिटिव और कुछ ठोस बदलाव लाऊं। जैसे मैंने यूपी में नोटिस किया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या एक काफी बड़ी समस्या है। वाटर पॉल्यूशन, गंगा और यमुना जैसी नदियों से हम ब्लेस्ड हैं, स्टिल इस स्टेट में गंगा और यमुना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पहले की तुलना में गंगा की स्थिति फिर भी अभी बहुत बेहतर है, पर यमुना की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और तो इस तरह मैं चाहूंगी कि कुछ ठोस और पॉजिटिव कदम उठाऊं, जिससे या स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करके, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करके, प्लास्टिक बैन हो रहा है उसका नियम है लेकिन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इन सबको मैं ज्यादा सीरियसनेस के साथ अपनी ड्यूटी निभाना चाहूंगी, और कुछ ऐसा जो जब चुनौतियां सामने आएंगी तो और अधिक बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी। लेकिन फिलहाल मेरा एम तो यही है कि यूपी को डेवलपमेंट के साथ साथ उसका पर्यावरण भी संरक्षित रहे। ये वाइल्ड लाइफ, बीइंग अ जूलॉजिस्ट, मुझे वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के प्रति जो पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो सब ना हो, पोल्यूशन ना हो, कंट्रोल में रहे, प्रिवेंशन रहे, ये सब। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Yes, Miss Ayu Singh, am I audible? Yes sir, good evening sir. Good evening, good evening. So, Miss Ayu Singh, you belong, your alma mater is BHU. So, tell me something about BHU. सर, ये बहुत पुरानी संस्था है, मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट की थी,
और सर एक खास बात जो बीएचयू कैंपस की है कि बहुत बड़ा परिसर होने के बावजूद भी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बेहद साफ सुथरा, और स्पेशली अगर मैं यूपीपीसीबी के इंटरव्यू में बैठी हूँ तो मैं बताती हूँ कि वहाँ का पर्यावरण जो है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, बहुत हरा भरा हमारा कैंपस है। इसके अलावा सर मेरे डिपार्टमेंट की खास जो बिग शॉट्स ऑफ इंडिया जेनेटिक्स के मामले में या जूलॉजी के बड़े बड़े नाम हमारे डिपार्टमेंट से निकलते हैं, एस सी लकोटिया सर और जेके रॉय सर, ऐसे लोग। तो यस सर। ऑल राइट, सो यू आर टेलिंग कि जो कैंपस है आपका बहुत हरा भरा है, तो अपार्ट फ्रॉम ट्रीज प्लांटेशन, उसके अलावा और ऐसी क्या चीज है जिसे आप कंसिडर करेंगे कि सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए हमारी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया है? सर हमारे कैंपस में इतनी सारी बिल्डिंग होने के बावजूद भी, इतने वाहन चलते हैं उसके बावजूद भी, जो सर एक पॉपुलेशन है पिकॉक की पॉपुलेशन, वो हमारे कैंपस में ही इतनी ज्यादा है कि पूरी सिटी में शायद कि किसी एक प्लेस पे इतनी नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सी, मैं तो जूलॉजी से हूँ तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है, हम लोग अक्सर जाते थे, हमारा एंटोमोलॉजी का प्रैक्टिकल जब होता था तो इतनी वैरायटी जो एनिमल्स की और सॉइल में जो फना है उसकी मिल जाती है आसपास। हम बर्डिंग करने जाते थे इन द मॉर्निंग, सो इतने बर्ड्स की स्पीसीज आसपास मिल जाती हैं सर। इट इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ वेरी गुड इकोसिस्टम, अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम आई वुड से। तो सर ऐसा नहीं है कि सारे जो भी बॉटनिकल गार्डन है ज्यादा बिल्डिंग बनाने के लिए उसे काट दिया या सब ये कर दिया। एनिमल्स को बहुत ही प्रोटेक्शन में और बहुत ही साथ लेके चलने वाली व्यवस्था जो मुझे समझ आती है। Okay. Yes, sir. So your PhD is on diabetes and Indian spices correlation, right? Yes. So what is difference between diabetes and insulin resistance? So insulin resistance, okay. So the diabetes is confirmed after the hyperglycemia condition. If you're checking your blood sugar level, and hyperglycemia condition will repeatedly occur at least 3 times, and in the fasting level, then you can confirm this person so and so is type 2 diabetic. But insulin resistance is the pre-diabetic condition also. So first condition is creating insulin resistance, and then pancreatic disturbance and beta cell destruction happens, and then this person or individual will get type 2 diabetes. All right. So what are the type of diabetes? There are majorly 2 type of diabetes, type 1 and type 2. But nowadays, clusterly, we found type 3 diabetes also. All right. What is the correlation between pollution and diabetes? Is there any? Sir, directly, it is not directly related, but if I would connect the dots, then so the agricultural runoff, pesticides and the chemicals, heavy load जो केमिकल में है फूड एंड इसमें सर, उसकी वजह से या हमारी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है प्लस हमारा फूड हैबिट जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टमिक फंक्शंस हैं वो ऑल ओवर खराब हो रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की वो कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज होना प्रोन हो जाता है। मतलब इट्स नॉट कि इस वजह से डायबिटीज हो रही है, बट आपकी बॉडी अगर ऑलरेडी वीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है बॉडी में, इम्यून वीक है, तो सेल्स अपने आप में कहीं ना कहीं वीक है, ऑर्गन वीक है, तो सर इट इज पॉसिबिलिटी बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। Okay, so what is your take on Delhi smoke problem? Sorry, sir. Delhi smoke problem. Delhi is facing smoke problem every winters now and then. What is the major cause of Delhi smoke? सर वन मेजर प्रॉब्लम इज पराली जलाने की जो एक समस्या सामने आती है किसानों के सामने। तो वे पराली जलाते हैं और जो भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू जलाने की वजह से जो गैसेस रिलीज होती हैं वो डायरेक्ट जियोग्राफिकल रीजन इस तरीके का ट्रैप है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है।
Another reason is temperature inversion because generally ये स्मॉग की कंडीशन जो भी आती है ये विंटर्स में आती है और विंटर्स में टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन बनती है बिकॉज जो ग्राउंड है वो बहुत तेजी से ठंडा होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट. Okay, so are you aware about latest Delhi EV policy? यस सर. सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इवन यूपी मे बी सीपीसीबी की भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज जो पेट्रोल एंड डीजल पेट्रोलियम बर्न के वजह से इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से जितनी भी गैसेस रिलीज होती हैं उनसे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से. No, there has been change recently in Delhi EV policy. So are you aware about the latest development? Latest development, I will check, sir. I will check. Yes, sir. I'm not aware. Okay, so since you have spent so much time in Banaras, could you tell me about Kashi Vishwanath corridor? What is it? Sir, it's a religious place. सर लॉर्ड शिवा का मंदिर है वहां पर और ये बहुत पुराना मंदिर है. 1400 ईस्वी के समय पे इसको थोड़ा सा कहते हैं कि यहाँ पर कुछ हमला हुआ था जिसकी वजह से मंदिर तोड़ा गया था. अब दोबारा से इसको जब रीइंस्टीट्यूट किया गया है, दोबारा बनाया गया है, तो एक कॉरिडोर की भी का भी निर्माण किया गया है जो कि गंगा के किनारे स्थित घाट और जहाँ आरती होती है वहां स्थित है और इसकी वजह से इको टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला है. All right. Yes. So that will be all from my side. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. See, you are one of the best candidate that we have interviewed till now. But saying that, आपको अब ये चीज का ध्यान वहां पर भी रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है. Okay, sir. अभी जो मार्क्स आपको दिए हैं वो एवरेज मार्क्स जो है सारे पैनल मेंबर्स के, इट इज 48. Okay, sir. बस जैसे आपने बीच में स्विच मारा था, इंग्लिश से हिंदी में स्विच मार लिया था आपने, तो आप शुरू में ही एक ही लैंग्वेज पकड़ सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में तो शुरू से ही हिंदी में आप बोलना चालू कर दो. जब आपने स्विच मारा तो हमने भी स्विच मार लिया हिंदी में, तो शुरू से ही आप उसको पकड़ सकते हो. बीच में स्विच करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे. Okay, sir. टेक्निकल भी ठीक है, नॉन टेक्निकल भी मेरे ख्याल से सर ने मैम ने काफी चीजें पूछी हैं. बस एक जो मैम ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप पीएचडी कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन आपकी ज्यादा है, तो क्यों टेम्परेरी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा प्रिपेयर कर लेना. Okay, sir. कि इसको कैसे जस्टिफाई करोगे वहाँ पे. हाँ सर. सर आपने कहा हिंदी में बोल सकती हूँ, तो क्या मैं अपना इंट्रो भी हिंदी में बोल सकती हूँ? हाँ, इंट्रो भी हिंदी में बोल सकते हो आप. तो जब आपसे वो बोलेंगे, चलो मान लो जरूरी नहीं है शुरू में आपसे वो इंट्रो ही पूछे, मैंने इंट्रो पूछ लिया, वो कुछ और पूछ सकते हैं. तो जब भी वो सवाल पुटअप करते हैं, अगर उन्होंने हिंदी ने पूछा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई. फिर तो कोई इशू ही नहीं है इसका. अगर इंग्लिश में पूछा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सवाल जो वो पूछते हैं, आप उनको बोल सकते हो सर कैन आई स्पीक इन हिंदी. तो वहीं से फिर वो मना करने का कोई स्कोप रहता नहीं है. 0.1% चांस है कि मना करें आप. तो वहीं से अपना फिर प्रोसेस हिंदी में स्टार्ट हो जाएगा पूरा. जी. व्हाट डू यू सर? मैम परफेक्ट है सब कुछ, आपको बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है. बाकी जो भी आपके थोड़े वीक पॉइंट है जो आपको लगता है बस उनको प्रिपेयर कर लेना, बाकी एवरीथिंग इज फाइन. सर मैं आप सबको ही ओवर कॉन्फिडेंट लगी क्या? क्योंकि अभी तक मैंने जितने नहीं अभी हमारे नंबर आपको अच्छे दिए, कभी उस चीज को लेकर के मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है. अच्छा, मैं अभी तक मुझे जितने फीडबैक मिले वो ये मिले हैं कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंस में हैं, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो. नॉलेज ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद मैंने मतलब मेरा नहीं, आपको मार्क्स देने के बाद बोल रहे हैं कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना. क्योंकि हमने जितना भी अभी देखा है उसमें से सबसे अच्छा परफॉर्म आपने ही किया. अच्छा, कभी आप ये देखे कि भाई मेरा तो बहुत ही सॉलिड गया है अब यहाँ पर, उस चीज को लेकर जैसे मैं आज थी इतनी सहज रहकर मैं अपनी बात रखूंगी तो ठीक लगेगा. बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा जाएगा अगर आप जैसे आज आपने दिया सेम इसी तरीके से आपको उस दिन भी रिप्रेजेंट कर. ओके सर, थैंक यू सर. स्वाति मैम, you were a good candidate. Maintain this calm. जैसे आप आज थी ऐसे ही वहां पर भी परफॉर्म करना. All the best. थैंक यू मैम. अमित सर. जी मैम. मैम बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन था, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया. सभी टीचर्स ने बताया कि यूर काम कंपोज. देखिए वही देखना है बोर्ड को भी. और दूसरा एक चीज हमेशा ये देखिए कि जब भी आप आंसर कर रहे हैं ना, कि
पोल्यूशन बोर्ड के हिसाब से आंसर मत कीजिए, आप ऐसे आंसर कीजिए कि आप अपने डायरेक्शन में बोर्ड को ले जाए। अब आपकी स्ट्रेंथ है आपकी पीएचडी, वहां पर शायद ही बोर्ड मेंबर ऐसा होगा जो आपकी पीएचडी के बारे में इतना डिटेल में जानता होगा जितना आप जानते हो। तो आप अपनी पीएचडी को डिस्क्राइब करो वहां पर, तो मेक श्योर कर दो ना कि उनके अगले सवाल आपकी पीएचडी पर ही आ जाए, कि वहां पर फिर यू कैन आंसर वेरी फ्रीली। ना कि हम और डायनामिक जोन में चले जाएंगे तो फिर वो इंटरव्यू किसी भी लेवल पे जा सकता है। इसलिए उसके अलावा इसीलिए चारों डायरेक्शन से हम पूछ ही रहे थे, क्योंकि बनारस से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप वहां पर थे, पीएचयू से भी आ सकता है, हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी है। और बिल्कुल सही आंसर किया आपने। थोड़े इन पॉइंटर्स को आप देख के चले जाइए। जैसे मैंने पूछ लिया था कि भाई आपको और क्या लग रहा है, पेड़ के अलावा और क्या है, तो बोल सकते हैं कि सोलर पैनल लगे हुए हैं भाई सर्दियों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह की चीजों को आप बोल सकते हैं, वो अपने कैंपस में देख सकते हैं आप उस चीजों को, तो इट माइट हेल्प। दूसरा बेसिक जैसे काशी इकोनॉमिक कॉरिडोर है आपका, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, दिल्ली स्मोक है, ईवी पॉलिसी, इनको थोड़ा सा देख के चलिए ईवी पॉलिसी क्योंकि हाँ बाकी ओवरऑल गुड कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और यही इसी कंपोजर के साथ इफ विल गो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सर।